So, shall we pray? Dear Lord, we humbly submit ourselves at your feet for this evening Bible study, looking unto you and for your grace. Please तो lead us and guide us and speak to us, and let your name be glorified. We seek your special grace and wisdom to know you better so that we may love you better. In Jesus' name we pray. Amen. amen। Okay, we have been studying uh, the book of letter written by Apostle Paul to 1 Corinthians. So, in the previous class, we have completed ninth chapter. We need to continue from 10th chapter onwards. और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों हम कुरिन्थियों की पत्रियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम 9 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 10वें अध्याय से आगे देखेंगे। So, in the previous class, we have seen how Apostle Paul had a beautiful commitment about for his calling. और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस जो हैं अपनी बुलाहट के लिए किस प्रकार एक समर्पण को दिखाते हैं। 1 second, 1 second. So today we need to read 1 Corinthians chapter 10. Here afterwards, maybe I will rush through. So far, we have been studying in little detailed study rather than a brief survey. और अभी तक हम काफी विस्तार से अध्ययन कर रहे थे और इसको अध्ययन करने के बाद हम थोड़े से आगे तेजी से बढ़ेंगे। So in the 1 Corinthians chapter 10, we find how Apostle Paul, you know, briefs the story of Israel 40 years journey into just a few verses. और इस वचनों में पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इजरायलियों की जो यात्रा थी 40 दिन की जंगल में, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताया है। So we need to remember that history of the people of God is very important. तो हम इस बात को समझना है कि परमेश्वर के लोगों का जो इतिहास होता है वो महत्वपूर्ण होता है। So because when we read the history of the people of God, we see how the people of God interacted with God, and what happened when they obeyed, what happened when they disobeyed. तो हम जो परमेश्वर के लोगों का इतिहास पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। किस प्रकार वो आज्ञा पालन करने से उन्हें आशीष मिलता है, किस प्रकार आज्ञा नहीं पालन करने से उनके जीवन में समस्याएं आती है। ये सारी बातें हम इतिहास पढ़ने से देख पाते हैं। How God was working with the people of God, and we will be learning many sweet lessons from them. और किस प्रकार परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करते हैं, उस चीज़ों को देखकर हाँ, परमेश्वर के बहुत सारे कार्यों को हम सीख पाते हैं। Here we need to understand two important things. और यहाँ पे हम दो महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। God never changes, his way of dealings never changes. और परमेश्वर कभी नहीं बदलते और परमेश्वर की जो व्यवहार करने का तरीका भी कभी नहीं बदलता है। That means God characteristics are same, never changes. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के जो गुण होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं, वो एक सा रहते हैं। And at the same time, when we see the people of God, they are like us. They also have the same Adamic nature which we have. और जहाँ तक हम परमेश्वर के लोगों का अध्ययन करते हैं तो वो भी हमारे समान होते हैं। जैसे हमारे अंदर आदम का गिरा हुआ स्वभाव है, वैसे ही उनके अंदर भी वो स्वभाव पाया जाता है। So when we carefully observe their life and testimony, we will learn many precious lessons. That's what Apostle Paul says here, 1 Corinthians chapter 10 and verse 11. और प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 11 में इन्हीं बातों को बताते हैं कि जब हम परमेश्वर के लोगों के जीवन को और गवाही का विश्लेषण करते हैं तो उसे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हम सीख पाते हैं। Now, these things happen to them as an example
that they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, और let him who thinks he stands take heed that he does not fall. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 11 और 12 में ऐसा लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। So let me read so that it is self explanatory. I don't have to explain much. I just will rush through because maybe God willing, today we will finish 1 Corinthians. और हम इसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट है, और हम तेजी से आगे बढ़ेंगे ताकि पहला कुरिन्थी की किताब आज अध्ययन में पूरा उसके अध्ययन को पूरा कर सके। For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. Now these things happen as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink, and stood up to play. Nor let us let us act immorally, as some of them did, and 23,000 fell in one day. Nor let us try the Lord, as some of them did and were destroyed by the serpents. Nor grumble, as some of them did and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। The journey of Israel is very much briefly narrated here. और इजराइलों की जो यात्रा थी वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने बताया है इसे। So Apostle Paul brings out highlights of this 40 years of journey in just a few verses. और केवल कुछ ही वचनों में प्रेरित पौलुस ने इजराइलों के द्वारा जो 40 वर्ष की जो यात्रा थी उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। So the first point, we know that they were delivered from the clutches of Pharaoh, the king of Egypt, and they started their journey from Egypt. They came up to the Red Sea. और पहली जो बातें हम सीख रहे हैं कि फिरौन के द्वारा जो गुलाम थे मिस्र में, ये परमेश्वर के लोग, वो लोग वहां से निकले और वे लोग वहां से लाल समुद्र तक की यात्राओं पे पहुंचे। ये पहली बात हम यहाँ देखते हैं। So that is the first step of redemption. तो ये है छुटकारे का सबसे पहला क्रम। And then he says,
the passing through of Israel through the Red Sea, and it is compared to a baptism. Verse 2, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. और जो इजरायली लोग यहाँ से निकले थे लाल समुद्र के पार करके, इसको यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने मूसा का बपतिस्मा के रूप में प्रकट किया है। और जो कि पहला कुरिन्थी 10:2 में लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। So that they did not take baptism into Moses, but under the leadership of baptism, under leadership of Moses, they went through the Red Sea in a dry path. और यहाँ पे मूसा का बपतिस्मा का मतलब मूसा का ही बपतिस्मा नहीं है, परंतु मूसा की अगुवाई में जो उन्होंने सूखे समुद्र के को पार करके वहां से निकला, उसके बारे में यहाँ लिखा है। When we see the New Testament believer, there Apostle Paul writes to Romans chapter 6 that we were all baptized into Christ. He talks about into Christ. Here he talks about baptized into Moses. There in Romans chapter 6, there Apostle Paul says we were all baptized into Jesus Christ. और नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम के विश्वासियों को प्रेरित पौलुस ने बताया कि रोमियो की किताब अध्याय 6 में कि उन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है। We have और यहाँ already, yeah, please go ahead. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बताया जा रहा है कि मूसा में लोगों ने बपतिस्मा लिया है। We have already studied in our previous classes categorically because this is something very important principle. और हमने पिछले समय बहुत ही इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने पढ़ा हुआ है। Let us just recall Romans chapter 6 and verse 3. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in the likeness of his death, certainly we shall be in the likeness of his resurrection. और रोमियो की किताब अध्याय 6 उसके 3 और 4 में और 5 में हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। So we have studied already when we studied Romans chapter 6. I don't want to repeat it again. और ये सब बातें जब रोमियो की किताब हमने पढ़ी थी, उसके 6वें अध्याय में हम सीख चुके हैं। So when Apostle Paul is quoting about the journey of Israel, he was talking about fundamental principles of a believer. First redemption and then baptism. तो जब प्रेरित पौलुस इजराइलियों की यात्रा के बारे में बताते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का पहले छुटकारा होता है और उसके बाद बपतिस्मा होता है। And then 1 Corinthians chapter 10 and verse 3. All drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. और पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 3 और 4 में ऐसा लिखा है, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। We will study a little later, even right today, about the fellowship of with God over the Lord's table. और इस थोड़ी देर के बाद हम जो प्रभु के मेज की संगति होती है परमेश्वर के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं, उसको हम कुछ देर के बाद सीखेंगे। And then, so first of all, he talks about redemption, and then he talks about baptism, and then he talks about, enjoying fellowship with God, drinking, and that adds to bread as well. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस पहले छुटकारे के बारे में बताते हैं, छुटकारे के बाद दूसरा बपतिस्मा होता है, और बपतिस्मा के बाद परमेश्वर के साथ संगति होती है, जिसमें हमें पीने का अवसर मिलता है और साथ ही रोटी भी मिलती है।
So there actually they ate manna, heavenly manna. They were to follow the instructions as they eat food. That's what we find in their journey. Very important aspect of spiritual parameter. और हम देखते हैं कि स्वर्गीय मन्ना जो है इजरायली लोग खाते थे, क्योंकि उन्हें यात्रा के दौरान निर्देश मिला हुआ था। ये जो बातें हैं इसे हम विशेष आत्मिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। So, because the Lord said, I have a special covenant with you, and I have chosen you, that you will find in Exodus chapter 19, verses 5 to 6. And then a sacrifice was offered, a blood was, spilled over as a covenant between God and his people. We find it in Exodus chapter 24 and verse 8. और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने वाचा बांधी है, नई वाचा लोगों के बीच में, और परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है और उसके साथ वाचा बांधी है। ये बातें पुराने नियम में भी निर्गमन की किताब 19 के 5 और 6 में हम देखते हैं। साथ ही प्रभु ने जो बलिदान किया, परमेश्वर ने जो लहू बहाया है मनुष्य की छुटकारा के लिए, उस लहू की वाचा के बारे में भी हम देखते हैं, जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में बांधी गई थी, जो निर्गमन की किताब 24 के 8 में लिखा है। And then we find God gave them the law at the Mount Sinai. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सीनै पर्वत पर अपने लोगों को व्यवस्था दी। So there, Apostle Paul talks about very important aspects of their spiritual matters. Verse 7, do not be idolaters. He talks about idolatry. And then verse 8, let us not let us act let us nor let us act immorality. That's point number 2. And point number 3, nor let us try the Lord, verse 9. And then point number 4, verse 10, nor grumble as some of them did. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वो आत्मिक विषयों को लेकर 4 प्रकार की बातें बताते हैं जो इजरायलियों ने की थी। और 7 वचन में लिखा है कि वे लोग मूर्ति पूजक बन गए थे। और 8वें वचन में लिखा है कि उनमें से बहुतों ने व्यभिचार किया था, वो हम ना करें। और 9वें वचन में वो बताया उन्होंने कि बहुत सारे लोग प्रभु को परखे थे, वैसा हम ना परखें। और 10वें वचन में चौथी बात उन्होंने बताई कि तुम ना कुड़कुड़ाओ, जैसा कि उनमें से कितने लोग कुड़कुड़ाए थे। So God very clearly commanded them that they cannot have any other apart from the Lord Himself. They cannot make any idol of any kind. That is the very important of all commands, 10 commandments God gave them, but they missed it. और हमने देखा कि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से मनुष्यों को आज्ञा दी थी कि परमेश्वर से कभी अलग नहीं होना और उससे अलग होकर कोई भी मूर्ति नहीं बनाना। और 10 आज्ञा में भी हमने देखा था कि प्रभु ने कहा था कोई प्रतिमा नहीं बनाना, परंतु ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के अलग हो गए। We find it in Exodus chapter 32. Even Moses did not come down, to meet the people of God, and they couldn't have any patience. They said, where is Moses? Moses is gone to be with God. He didn't come. Then immediately they started rebelling against God, and then they pestered Aaron, and they made a calf, and they started drinking and dancing. The anger of God broke like anything, so much so that Moses broke those two slates upon which 10 commandments were written by the very finger of God. और हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब अध्याय 32 में भी जबकि मूसा आज्ञाओं को लेकर नीचे नहीं आ पाया था, लोग धीरज नहीं धर पाए और लोगों ने अपना धीरज खो दिया और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में चले गए। और उन्होंने हारून को परेशान किया और हारून को जिद करके उन्होंने एक बछड़ा बनवा दिया सोने का, और उस बछड़े के सामने लोग नाचने गाने लगे। और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर और मूसा को क्रोध दिलाया, और इस कारण मूसा ने उन पत्थर की 2 पटियाओं को जिसपे आज्ञा लिखी थी उसे तोड़ दिया। And then verse 6, now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they all also craved. और 6वें वचन में अब लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। So the first thing is idolatry. We should be very, very careful about idolatry.
तो सबसे पहला था मूर्ति पूजा, इसलिए मूर्ति पूजा के बारे में स्पष्ट जानना है। So God is always number one priority. We can never push God to the second level of priorities. और परमेश्वर जो है हमेशा पहली प्राथमिकता में रहते हैं, कभी भी परमेश्वर को हम दूसरी प्राथमिकता में नहीं लाना है। So many people think that we don't worship idols or physical idols, but there can be software idols. और बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम तो साक्षात रूप में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कई बार लोग जो हैं एक सॉफ्टवेयर के रूप में, अर्थात अंदरूनी भावनात्मक रूप से वे मूर्ति पूजा में सम्मिलित होते हैं। So idolaters in the heart. और बहुत सारे लोग हृदय में मूर्ति पूजा करते हैं। So the place which God should occupy, nothing should occupy. I tell you, even your family members, your spouse, your wife, or your husband, or your children, even for that matter, ministry. God must be always number one priority, and nothing should take place the place of God. Whenever and whatever takes the place of God, it is called an idol. और प्रियो, हम परमेश्वर की जगह कभी किसी को नहीं देना है। कोई भी चाहे क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या इवन कोई हमारी सेवा ही क्यों ना हो, हम परमेश्वर की जगह पर उसे नहीं रख सकते। और अगर हम परमेश्वर की जगह पर किसी दूसरे को रखते हैं, इसे ही मूर्ति पूजा कहा जाता है। And then verse 8, immorality. We find the example drawn from Numbers chapter 25, verses 1 to 9. और 8वें वचन में जो व्यभिचार के बारे में लिखा है कि इन्होंने व्यभिचार किया, उसके बारे में गिनती की किताब 25 अध्याय के 1 से 9 के बीच में लिखा है। We know that the story of Balaam, Balaam could not curse the people of God, and he was so upset. So the strategy what he played was he allowed the ladies of Moabites dance or have some kind of program with these people of God, and there they committed immorality and then idolatry. We find number chapter 25, this great tragedy happened in their life. और निर्गमन की किताब 25 अध्याय में हम बालाक के बारे में देखते हैं, सॉरी, बिलाम के बारे में हम देखते हैं। और ये जो बिलाम है, इन्होंने परमेश्वर के लोगों को श्राप देने की कोशिश की, लेकिन ये श्राप दे नहीं पाया। और इन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया और मुआबी स्त्रियों को साथ में रहकर उनके नृत्य को देखा, और बहुत सारे ऐसे मूर्ति पूजा का काम शुरू कर दिया, और लोगों के मध्य में व्यभिचार और मूर्ति पूजा का काम सिखाने वाला व्यक्ति बन गया। So when they committed immorality, adultery, fornication, Bible says verse 8, 23,000 fell in one day. और यहाँ लिखा है कि जब उन्होंने व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया और ऐसे पराये देवताओं की जब आराधना किया, तो इसके द्वारा लिखा है लगभग 23,000 लोग मर गए, जो कि 8वें वचन में लिखा है। So the warning what we need to take is idolatry, number one dangerous sin that can creep in the life of believers. और इसलिए हम चेतावनी के रूप में देख रहे हैं कि विश्वासियों के जीवन में जो मूर्ति पूजा का जो पाप होता है, व्यभिचार का पाप, वो बहुत ही गंभीर विषय है। And secondly, immorality or adultery or fornication can also, very cunningly can slip into the lives of believers. We should be very careful about it. और जैसे मूर्ति पूजा का पाप विश्वासियों के जीवन में बहुत बड़ी एक चेतावनी है, उसी प्रकार व्यभिचार जो है और जो अशुद्ध काम है, दुष्कामना, वो भी विश्वासियों के जीवन में आने के लिए बड़ी एक चेतावनी दी गई है कि वो उनके जीवन में ना हो। Every believer, every Christian, when we handle with opposite gender, whatever may be the age group, everyone must take special care so that we should not entertain any kind of evil, even in the thoughts level. It should be properly taken care, otherwise, we will get into problems. और हम में से जितने विश्वासी हैं, मसीही कहलाते हैं, जब हम विपरीत लिंग के साथ संपर्क में रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो हम ध्यान रखें कि वो किसी भी प्रकार की मनोरंजन के रूप में बुराइयां हमारे जीवन में ना आए, और ना ही वो विचार के रूप में आए। ऐसा ना हो कि वो बाद में समस्याओं को खड़ी करे। So, and the third one is verse 9. Nor
let us try the Lord, as some of them did and were destroyed by the serpents. और 9वें वचन में जो तीसरी बात लिखा है कि और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। So we find the illustration in Numbers chapter 21, verses 4 to 9. और इसे हम गिनती की किताब 21 अध्याय उसके 4 से 9 वचन के बीच में देख सकते हैं। They questioned God. Can God provide? Can God do this? Can God do that? They questioned God. They doubted God. They tempted God. We should not do that. और हम यहाँ देखते हैं कि गिनती की किताब 21 अध्याय के 4 और 9 के बीच में लोगों ने परमेश्वर से सवाल किया कि क्या वो हमें चीज देगा, क्या हमारे लिए करेगा, क्या वो नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने संदेह किया और परमेश्वर की परीक्षा लिया। These two, sins are very, very cunning and dangerous sins. We will just go through. We will not go in detail. Please turn with me to Numbers chapter 21. और ये दो पाप बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर पाप हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान करना जरूरी है। आइए मेरे साथ निकालें गिनती की किताब 21 verses 4 to 9. Then they set out from Mount Hor by the way of Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient because of their journey. The people spoke against God and Moses, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this miserable food." और यहाँ पे गिनती की किताब 21 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में हम देखते हैं, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है न और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। So sometimes, even as believers, as servants of God, we also tempt God. और कई बार एक विश्वासी और मसीह होने के नाते कई बार हम भी परमेश्वर की परीक्षा करते रहते हैं। Even devil also tempted the Lord Jesus Christ before getting into the ministry. और यहाँ तक कि शैतान ने भी, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में जाने वाले थे, उससे पहले शैतान ने भी उनकी परीक्षा ली। You are hungry? Why don't you make these stones into bread and eat? और शैतान ने कहा कि क्या आपको भूख लगी है? आप इस पत्थर से बोले कि ये रोटी बन जाए और आप इसे खा लीजिए। You have been fasting for 40 days and nights. आप पिछले 40 दिन से और रात से उपवास में हैं। You are the Son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। In some other translation, it was written, "If you are the Son of God." और कुछ अनुवाद में ऐसा लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। Then the Lord, quotes Deuteronomy chapter 8, saying that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और प्रभु ने इसके जवाब के रूप में व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय का वचन उन्हें बताया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। God provides, that we need to trust the Lord. और परमेश्वर देता है, उपलब्ध कराता है, इसलिए हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। God has been providing them all through. They have seen many times how God provided them miraculously. और उन्होंने देखा भी कि परमेश्वर किस प्रकार उन्हें पूरे मार्ग में कहीं ना कहीं रीति से परमेश्वर उन्हें चीजें प्रदान कर रहे थे। Sometimes God may not provide according to our timetable. कभी कभी परमेश्वर जो है वो नहीं देते हैं कोई चीजों को हमारे समय के अनुसार। So we should learn to trust the Lord that God will give in His time. We should have some patience. तो हम ये सीखना है कि परमेश्वर उसके समय पे देता है, इसलिए उस समय के लिए हमारे पास धीरज होना चाहिए। So tempting God, in advance, saying that, forcing God to do miracles. So many people, as Christians, they wanted miracles.
This is not good, this is not right. It's God who does it when it is required, but we should not tempt God to do a miracle. और हम देखते हैं कि कभी भी हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना कि वो चमत्कार करे। बहुत बार लोग प्रभु की परीक्षा करते हैं कि वो उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करे। पर प्रभु जब जरूरत होगी तब वो आश्चर्य कर्म करेगा। परंतु हम कभी परमेश्वर की प्रभु की परीक्षा नहीं लेना कि वो चमत्कार करे। Sometimes people pray, Lord God, if you are God, you do this. If you are God, you prove by doing so. That is wrong. That is called is tempting God. और कभी कभी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि यदि तू परमेश्वर है तो ये काम कर, यदि तू प्रभु है हमारा तो ये काम कर। ये जो है ऐसा नहीं करना, यही इसी को कहते हैं परमेश्वर की परीक्षा लेना। So please remember fundamental principles, the very inference what I understood by studying the Bible for more than 40 years, what I understood is और ये बात याद रखे प्रियो, ये जो आधारभूत सिद्धांत है बाइबल के, जिसे मैंने भी 40 साल से पिछले अध्ययन किया, उस बात को समझे। God is a giver of good gifts. और परमेश्वर अच्छे दान को देने वाला परमेश्वर है। God gives, God certainly gives. God will never fail. If God does not provide according to our timetable, let's not tempt him. Let's wait for his time. If God doesn't provide, let his will be done. Maybe that is not good for us. Maybe that is not good for us at that particular time. Maybe some other time he may give, and maybe he may not give. Let his will be done because he knows the best more than what we know about ourselves. और परमेश्वर हमारा देता है अच्छे वस्तुओं को, अच्छे दान को अवश्य देता है और अपने समय पे देता है। कई बार परमेश्वर हमारे ठहराए हुए समय पे कोई चीज नहीं देता, उस समय हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें। परंतु परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर सब कुछ करता है। पर कई बार वो हमारे समय पे नहीं करता है, और कई बार कुछ चीजों को वो हमारे लिए नहीं देता है, क्योंकि वो उस चीजों से भी बढ़कर अच्छी चीजों को देता है जो उसकी इच्छा में हमारे लिए होता है। And the fourth important lesson, what we can learn from them, is grumbling, murmuring. और चौथी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जो प्रेरित पौलुस बताते हैं कि इसराइलियों की यात्रा में उन्होंने शिक्षा के रूप में दिया, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 9 में, कि तुम कुड़कुड़ाओ नहीं जैसा कि उनमें से बहुत लोग कुड़कुड़ाए थे। And verse 10, nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. और 10 वचन में, 10 के 10 में लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। They have been grumbling and murmuring a number of times, but the climax is found in Numbers chapter 14 and 16. और बहुत बार वो कुड़कुड़ाए, लेकिन जो परिणाम है वो गिनती की किताब 14 और 16 अध्याय में लिखा हुआ है। So we know that how God sent 12 spies to see the land of Canaan, promised land. और हम उस उदाहरण को भी जानते हैं जहाँ पर इजराइलों ने 12 भेदियों को भेजा था, ताकि वो वायदे के देश में जाकर कनान का भेद ले सके। So they made a big rounds for about 40 days and returned. But out of 12, 10 people gave report saying that, oh, they are very tall, they are very strong. In their sight, we are like a small creatures, insignificant, we cannot fight, we will be defeated and we'll be totally destroyed. That kind of information they were giving to Moses. और जब ये 12 भेदिए लोग गए थे कनान की भेद लेने, उसके 40 दिन के बाद ये लोग वापस आए। और उसमें से जो 10 गोत्र के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत लोग लंबे हैं, ऊंचे हैं, मजबूत हैं, उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान और कीड़ों के समान नजर आते हैं, और हम उनसे हार जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, ऐसा 10 गोत्र के लोगों ने कहा। And they started instigating, saying that let us turn back to Egypt. There is no way of going forward because we can't fight with them. They will utterly destroy us. And they spoil the minds of the people of God. और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से वापस मिस्र चलें, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, हम लोग उनसे लड़ेंगे तो नष्ट हो जाएंगे हम। और उन्होंने लोगों के मनों को संदेह से भरमा दिया। They were attacking Moses and Aaron, saying that, have you brought us here to find all the graves for our children? और मूसा और हारून के ऊपर वो लोग कुड़कुड़ा गए,
और उन्होंने कहा कि क्या आप हमें और हमारे बच्चों को यहाँ कब्रों में मारने के लिए लेकर आए हैं। God was so angry because crumbling, God will not bear it. And they had to wander over for about 38 to 39, were all put together. 40 years they were wandering here and there till, Caleb and Joshua, who gave a very good report saying that if God pleases us, if God is with us, we can easily overcome them. Yes, God has promised, God will fulfill the promise, and we are more than conquerors. Let us trust the Lord. That's what even Caleb and Joshua said. Except these two, and all that generation, died in the wilderness. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कुड़कुड़ाहट के विरोध में क्रोधित होता है। और परमेश्वर इसके लिए क्रोधित हुआ, इसलिए इजरायली लोग 38 से 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे। और कालेब और यहोशू जो थे, केवल यही दो लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए, और ये लोग जयवंत हो गए और इन्होंने कनान को अपने अधिकार में ले लिया, अधिकारी बन गए। परंतु बाकी जितने लोग थे वे सभी लोग इस यात्रा के दौरान नाश हो गए। So, from the life and testimony of Israel, we need to remember four important lessons. तो परमेश्वर के लोगों से, अर्थात इजरायली लोगों के जीवन से और उनकी गवाही से हम महत्वपूर्ण 4 बातें सीखते हैं। So, whenever your ego, boots up, saying that you are God, you can do, you can manage, you don't need God, and you replace idol in the place of God, it is a testing time for you. और कभी कभी हमारे जीवन में जो घमंड आ जाता है और हम घमंड से परमेश्वर को कुछ कहने लगते हैं, कई बार परमेश्वर की जगह पर कुछ और बातों को हम रखने लगते हैं, तो ये वास्तव में एक मूर्ति पूजा होता है जो हमारे हृदय में आ जाता है। And secondly, whenever opposite gender, you get a temptation saying that opposite gender is nobody, you are all alone, it's a good opportunity, and better do something. And that kind of situation may come. Please remember, it is a testing. Stand firm for the Lord to live holy and never give an occasion to the devil. और हम देखते हैं दूसरी बात में जो लिखा है यहाँ पे कि कितने लोग व्यभिचार में चले गए। जब तितली के साथ अकेले रहते हैं तो लोग अवसर पाकर परीक्षा में पड़ जाते हैं, परखे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने रहें, लेकिन शैतान जो है वो हमारी पवित्रता को नष्ट करना चाहता है। Remember Joseph, Bible says, flee away from fornication, flee away from idolatry. और हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए यूसुफ के जो विकार से और दुष्कामनाओं से स्पष्ट रीति से वहां से वो भाग गया। So the third one is never tempt God. Let God be God. God will definitely provide. Patiently wait and never question or doubt the provisions of God. और तीसरा जो है वो है कि परमेश्वर को हम लगता है कनेक्शन मिस हो गया है. Let's wait. He will join again. Sorry for keep you waiting. I think Brother Anil Khare's connection got disconnected. Maybe he must be trying to join again. Yes, he is getting back. Yes, you're back. यस अंकल, देयर इज नेटवर्क इशू। Yeah, I could understand that. So then, ओके। fourthly, grumbling. It's also very dangerous sin.
Never allow it to, to get into our lives. और चौथी चीज है कुड़कुड़ाहट। इस कुड़कुड़ाहट को कभी भी मरमराहट कुड़कुड़ाहट को कभी अपने जीवन में काम करने नहीं देना है। Trust the Lord. When He promised, He will fulfill it, and He gives us the strength to overcome the enemy, and God will fight our battles. We will definitely inherit the promise which God has given us, but we need to patiently put on the armor of God and march forward. और हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास होना चाहिए। जरूर परमेश्वर हमारे शत्रुओं से जय पाने के लिए ताकत देता है, और परमेश्वर हमारे लिए लड़ता भी है ताकि हम उसके वायदे को प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें, हमेशा उस पर विश्वास रख के। There could be a temptation for idolatry, there could be a temptation of adultery or fornication, there could be a temptation of provisions, lacking of provisions, and there could be a temptation even to question, doubt God. और हमारे जीवन में कई प्रकार की जो परीक्षा हम परमेश्वर की कई बार कर लेते हैं हमारे जीवन में। अ, व्यभिचार के रूप में हमारे जीवन में परीक्षा आ सकती है, मूर्ति पूजा के रूप में परीक्षा आ सकती है, हमारे सामने घटी के रूप में कई बार वस्तु की घटी होती है तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। कई बार सवाल और संदेह के रूप में भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आ जाती है। So it's an opportunity to prove that we serve God and God is with us and we bring glory God. So be faithful, stand firm, never fall a prey to the devil. और परमेश्वर कई बार हमें इससे अवसर देता है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। प्रभु जरूर हमारे साथ है, हमें प्रभु को महिमा देना है, विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहना है, हम गिरना नहीं है और शैतान के आगे नहीं झुकना है। And then verse 13 says that God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. और पहला कुरिन्थी 10 के 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। I remember, Warren Wisby, a beautiful, wonderful Bible teacher, when he was speaking through the radio. I'm talking about maybe some 35 years back. I used to listen to him morning 7 to 7:15. Just for 15 minutes. He used to give beautiful messages. और जो वायरन विस्बी करके एक जो व्यक्ति थे, बहुत 35 साल पहले मैं उनका रेडियो में कार्यक्रम सुना करता था। सुबह 7 से लेके 7:15 तक वो 15 मिनट तक एक बहुत अच्छा संदेश दिया करते थे। I still remember the example what he gave. You know what he told me? और वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे जो आज भी मुझे याद है। आपको मालूम है वो क्या कहते थे? He says, when God puts you in furnace, his eyes on thermometer. और वो कहते थे कि अगर परमेश्वर आपको आग में जाने का अवसर देगा तो उसकी आंखें थर्मामीटर की ओर लगी रहेगी। He knows to what degree you can manage, you can bear. He never allows beyond what you can bear. He pulls you out because he knows, a hard iron can be made a beautiful instrument or a beautiful tool only when it go through the process of fire. It can be bent, it can be properly put to different shapes according to the requirement. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जानता है कि उसके लोग कितने आग को सह सकते हैं, कितने तापमान को सह सकते हैं। वो अच्छे से जानता है कि कितनी हमारी क्षमता है, और उसके बाद वो हमें बाहर निकाल लेता है उन परिस्थितियों से। जिस प्रकार हम एक लोहे को देखते हैं वो बहुत ही कड़ा होता है, लेकिन जब वो आग से होकर गुजरता है वो मुलायम हो जाता है और उसके आकार चेंज हो जाते हैं और एक बहुत सुंदर औजार के रूप में वो तैयार हो जाता है। So God is faithful. That's very important because that is his characteristics. When God says he will do it, that's it. He will never, contradict his character. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये परमेश्वर का गुण है। और परमेश्वर अपने गुण को कभी नहीं बदलता, वो हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हैं। Bible says God is faithful,
who will not allow you to be tempted beyond what you are able. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चे हैं, और कभी भी वो हमें हमारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देते हैं। When you are about to come to the climax of your capacity, then he makes a way of escape. और हम जब अपनी क्षमता के आखिरी स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो वहां से परमेश्वर हमें जानते हैं कि ये इसके आगे नहीं जा सकते, इसलिए हमें वो बाहर निकास होने के लिए रास्ता दिखाते हैं। Sometimes people are so stubborn, even when God opens the door to escape, they perish just because they don't escape from the door which God provides. और बहुत बार जो लोग हैं बहुत ही कठोर हो जाते हैं, और वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, और क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बाहर निकलने के लिए दिए गए दरवाजे से भी वो बाहर नहीं आ पाते हैं। So when God opens a door to escape, please escape from the door. Don't stay back and don't become a prey or don't you don't have to become a casualty. और प्रियो, एक बात याद रखिए, जो परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलते हैं, हम उस द्वार से बाहर आए, पीछे नहीं हटना है। उस द्वार से हम पीछे नहीं जाना है, और हम जाके शिकार नहीं बन जाना है, और हम अपनी नष्ट होने का कारण नहीं बनना है। And then we understand chapter 10, verses 23 to end the Christian liberty. There, Apostle Paul talks about the cup of the Lord and cup of the demons. और उसके बाद पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 23 से लेकर अंतिम वचन के बीच में प्रेरित पौलुस विश्वासियों की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और वो बताता है कि किस प्रकार हम दुष्ट आत्माओं के और प्रभु के दोनों के कटोरे से नहीं खा सकते हैं। So, Paul says you cannot partake both of the Lord's table and of the table of demons. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं खा सकते। Either or, either the Lord's table and not the table of demons, or the table of the demons and not the Lord's table. अगर दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से खा रहे हैं तो प्रभु के कटोरे में से ना खाएं, और अगर प्रभु के कटोरे में से खा रहे हैं तो दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से ना खाएं। So this we will understand more when we come to chapter 11. और हम इस बात को और अच्छे से समझेंगे जब हम 11वें अध्याय को देखेंगे। If we have to, before winding up chapter 10, there are two important things we need to understand. Chapter 10 and verse 23. All things are lawful, but not all things are profitable. All things are lawful, but not all things edify. और 10 अध्याय को पूरा करने से पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि 23 वचन में वो कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, पर सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। So Paul talks about the Christian liberty, things which are lawful for us, we can do it. But Paul says, even when they are lawful, but they may not be helpful, they may not be profitable. और प्रेरित पौलुस जो है इस बात को बताते हैं कि विश्वासियों की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं, और उस बात को हमें समझना है। वो कहते हैं कि सब वस्तुएं उचित तो होती हैं, लेकिन सब वस्तुओं से लाभ नहीं होता है। So please remember, in our lifestyle, there could be many things which are lawful, but still we should not do it, because the better thing is things which are profitable, things which are helpful is more important. For that reason, even though they are lawful, we don't do because they are not profitable and they are not helpful. और याद रखें प्रियो, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी बातें उचित तो होती है, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए या तो मददगार नहीं होती हैं, या तो लाभ की नहीं होती हैं। The higher level of spiritual understanding is even sometimes things which are helpful or profitable, they don't edify, and so we will not do it. तो ये आत्मिक समझ की बात है, और आत्मिक समझदारी की ऊंचाइयों की बात है कि कई बार बहुत सारी बातें उचित तो हैं, लेकिन अगर उससे हमें लाभ नहीं है तो वो बातें हम नहीं करना है। So let me say in another way, there are three levels of spirituality.
एक दूसरे उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि आत्मिक स्तर को हम तीन स्तरों में बांट सकते हैं। So many people, keep doing things which are lawful. They are just normal, Christians and believers. बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य जो विश्वासी हैं, वे जो हैं इस उचित कार्य को करते हैं जो उनके लिए उचित होता है। So their conscience says that I'm okay because I'm doing things which are according to the law. तो उनका विवेक कहता है कि चलो सब ठीक है, क्योंकि वचन में ऐसे ही लिखा है, ये उचित है। So, but they don't bother whether they are helpful or profitable or edify. And second level of Christians and believers, they do things beyond law. They go one level higher. They do things only when they are helpful or profitable. That goes beyond the law. और हम देखते हैं कि तो जो सामान्य विश्वासी जो होते हैं उनका विवेक कहता है कि चलो जो उचित है वो कर लो, भले उससे उन्हें मदद मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, उन्नति मिले ना मिले। परंतु दूसरे स्तर के विश्वासी वो होते हैं जो आत्मिक स्तर के, वो विश्वासी क्या करते हैं, जो उचित है, जो व्यवस्था में है, उससे भी ऊपर वो कुछ बातों को अपने जीवन के लिए करते हैं जो उनके लिए मददगार होती है, लाभदायक होती है, और उससे उनकी उन्नति होती है। The third level is, and they are the people who just do not bother about the basic level of law and order, but they go little a step higher. They do things only which edify the people. और तीसरे स्तर में वे लोग होते हैं जो कि नियम और जो आज्ञाएं होती है उससे काफी ऊंचा उनका स्तर होता है, और वो ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की उन्नति होती है। Actually, edification means from the root word, they build the people. We are supposed to edify the people, to build the people. Because of sin, it was all, the structure is collapsed, it was destroyed, and we rebuild. So, not just do things according to law, and first level, and the second level, not just because they are profitable or helpful, but the third level is they edify, they build, they raise people from the grassroots level to their level of maturity. और हम देखते हैं कि उन्नति का मतलब क्या होता है। उन्नति का मतलब होता है लोगों को बनाना, लोगों के जीवन को निर्माण करना। क्योंकि हम जानते हैं कि पाप क्या करती है, लोगों की संरचना को तोड़ देती है, लोगों के जो निर्माण की रचना को तोड़ के बिगाड़ देती है। लेकिन जो उन्नति है वो क्या करती है, लोगों के जीवन को फिर से बनाती है। तो हमने देखा तीन प्रकार के लोग हैं। पहले वे लोग हैं जो सामान्य विश्वासी हैं, जो जो उचित होता है वो करते हैं। दूसरा वो होते हैं जो उचित होता है, नियम आज्ञा उससे बढ़कर मददगार और लाभदायक बातों को करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिनसे लोगों की उन्नति होती है, लोगों का जीवन को बनाया जाता है, और वे लोगों के जीवन को निचले स्तर से उठाकर मसीह में परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। And then Apostle Paul talks about the food offered to idols, and then should we eat or not. और और उसके बाद प्रेरित पौलुस जो है उस भोजन की वस्तुओं के बारे में बताता है जिसे लोग कई कसाइयों के यहाँ और कई लोगों के यहाँ बिकता है, उसे हमें खाना चाहिए या नहीं। विश्वासियों और अविश्वासियों को उसके बारे में बताते हैं। We have already discussed this point in our earlier chapters. और हमने पहले के अध्यायों में इस विषय पे थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं। But here in this chapter, Apostle Paul says, chapter 10, verse 31, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. और पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 31 में हम देखते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। And then we will go to chapter 11. Chapter 11, first 16 verses talks about the authority structure. And then verses 17 to end, we find the details about the Lord's table. और हम देखते हैं कि जो 11वां अध्याय में पहला वचन से 16 वचन तक अधिकार के विषय में बताते हैं कि अधिकार कैसे होता है। और उसके बाद 17 वचन से आखिरी वचन तक प्रभु भोज के बारे में बताते हैं। There he talks about the order, God the Father and the Son of God, the Lord Jesus Christ, and then the man and then the woman.
और यहाँ पर वे क्रम के बारे में बताते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर के बाद मसीह है, मसीह के बाद पुरुष है, और पुरुष के बाद उसकी स्त्री है। There, Apostle Paul says that how Christ honored the Father and how man and woman honor the Lord and His presence by covering the head. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस बताते हैं कि कैसे मसीह जो है परमेश्वर का आदर करते हैं पिता का, वैसे ही लोग जो हैं वो किस प्रकार मसीह का आदर करते हैं, और किस प्रकार जो एक स्त्री है वो अपने सिर को ढांप कर वो अपने अपने सिर का आदर करती है। There are two schools of thought in this particular aspect as far as theologians' debate is concerned. और जहाँ तक ज्ञानी लोगों के आपस की विवाद की बात है, तो यहाँ पे दो प्रकार का विचार लोग रखते हैं। So, one school of thought, they are so strict, they simply follow it, and the other school of thought, they say that it is a culture that matter. Paul was talking about a particular group of culture background people, so it won't work for us. Things like that, the other group of theologians say that. तो यहाँ पे पहली विचारधारा के लोग बोलते हैं कि सिंपल बात है कि भाई यहाँ पे लिखा है तो सिर ढाकना है और हम इसे पालन करना है। लेकिन दूसरे विचारधारा के लोग ये बोलते हैं कि ये उस समय की संस्कृति थी, उस समय की पृष्ठभूमि थी, ये हमारे लिए नहीं है। So I don't think it is a big issue to have a debate about it. It simply leave it, because it's not a big matter. We can easily understand that. और यहाँ ये कोई आवश्यक नहीं है कि इस विषय को लेकर हम बड़े विवाद करें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम छोड़ना है और आगे बढ़ना है। So because it doesn't have any implication on salvation, or it doesn't has any implication on sanctification. और हम जानते हैं कि हमारे उद्धार से और पवित्रीकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इन बातों को ध्यान नहीं देना है। So let me make a passing on comment at this point of time, because the different schools of thought a picture has come up. और यहाँ हमें थोड़ी चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग यहाँ पे विचार होते हैं। So we need to think whether it is a major issue or minor issue. हम हमेशा देखना है कि कोई जो विषय है वो बड़ा विषय है कि छोटा विषय है। So, which one is the major issue? Whichever affects the doctrine of salvation or whichever affects the doctrine of sanctification, that is the major issue. तो बड़ा और मुख्य विषय क्या होता है? बड़ा और मुख्य मुद्दा वो होता है जहाँ पर उद्धार के सिद्धांत और पवित्रीकरण के सिद्धांत में फर्क पड़ता है। But thing which has nothing to do with salvation or nothing to do with sanctification, we don't need to waste our time in going for debates and all that. Of course, if you have enough time, it's good to read the books and different schools of thought, why they are saying what they are saying, and what we can do, and things like that. तो हम याद रखना है कि जहाँ पे जो विषय जो है अगर उद्धार और पवित्रीकरण को ध्यान नहीं देता है तो उस विषय पर अध्ययन का बहस करने से कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद बर्बाद करने से कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम समय और विवाद उस पे खर्च ना करें। परंतु अगर पढ़ने वाली बात है तो जरूर पढ़ें कि क्यों होता है, क्या होता है, इन सारे विषयों को हम पढ़ सकते हैं। So every man and every woman must honor God in His presence. That's there is no negotiations, and we have to honor the Lord. We have to glorify God. No second thought. और यहाँ पे एक ही मुख्य विचार है जो 4 वचन से 16 वचन के बीच में पढ़ते हैं कि हर स्त्री और पुरुष को अपने परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना चाहिए। And then verses 17 to end, we find about the instructions about the Lord's table. There, Apostle Paul says, "Whatever I have received from God, I am passing it on to you." That means to say that it is not my instruction, it is not my order, it is what God's order or God's instructions or God's commands I have simply received from the Lord. I am passing it on to you. और पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 17 से लेकर आखिरी वचन के बीच में हम प्रभु भोज के बारे में देखते हैं। और प्रभु भोज के विषय में पौलुस बताते हैं कि जो बातें प्रभु के द्वारा मुझे पहुंची वो बातें मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। ये जो बातें हैं वो मेरी ओर से नहीं है, परंतु प्रभु ने जो बातें सिखाई है वो प्रभु भोज की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। And then verse 23, chapter 11. For I have received from the Lord that which I also delivered to you,
that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took the bread. और हम देखते हैं 23 वचन से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली। This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Verse 24 and verse 25. This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. और 24-25 में ऐसा लिखा है, 26 में, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। So theologians declare saying that the Lord's table is mandatory for every church. और प्रभु के जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी कहते हैं कि हर कलीसिया के लिए प्रभु भोज जो है एक अनिवार्य सेवा है। For that matter, there are only two physical exercises every church must do. One is baptism, the waters of baptism, and the second one is the Lord's table. तो व्यवहारिक रूप से वस्तुओं के साथ में जो 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 दो महत्वपूर्ण आज्ञाएं कलीसिया को मानना है, वो पहला है बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। Apart from these two, there is no mandatory. It's all depends upon the local culture, local understanding of the church leadership, whether they should do this or not. तो ये जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये अनिवार्य है। इन दो चीजों के अलावा चर्च में जितनी भी होती हैं वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति हो सकती है, उनकी समझ हो सकती है, वो उनके अनुसार हो सकता है, जो बातें महत्वपूर्ण नहीं है। So the Bible says that the bread which is broken is a symbolic representation of the body of Jesus Christ broke on the cross of Calvary on our behalf. और बाइबल में यहाँ जो कहा गया है कि जो मैंने रोटी तोड़ के तुम्हें दी है, ये रोटी मसीह की देह को तोड़ने का चिन्ह है, जो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और मेरे बदले तोड़ दी है। And the blood shed on the cross of Calvary is represented as wine that is being taken. That not wine of intoxication, but grape juice, not fermented. और दूसरा है जो दाखरस यहाँ पे दिया जाता है, वो दाखरस क्रूस पर बहाया हुआ मेरे लहू का नया वाचा है, जिसे आप मेरे इसे स्मरण करते हुए पीना है। और ये दाखरस जो है ये फलों का जूस है, ना कि फर्मेंटेशन किया हुआ शराब नहीं है। So many people accuse saying that you drink wine in the church. No, we Christians don't take wine which causes intoxication, but they take grape juice, but it is called wine, not और wine that और is एक बात sold याद in रखना है, बहुत the liquor shop. और एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि चर्च में आप लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्योंकि चर्च में ये जो यहाँ पे दाखरस पीने वाला जो शब्द है, हालांकि इसे वाइन कहा गया है, लेकिन ये वो नहीं है जो कि शराब खाने में, शराब की दुकान में मिलने वाली शराब नहीं है, परंतु ये दाखरस है। It is simple grape juice, no misunderstanding whatsoever. और इसे हम फलों का जूस या एक अंगूर का जूस भी कह सकते हैं साधारण रूप में। So the Bible commands, do this in remembrance of me. और बाइबल बताती है कि मेरी याद में तुम्हें ये सब करना है। So the Lord is commanding His church to enjoy fellowship with Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जो लोग हैं वो प्रभु की संगति का आनंद लें। And secondly, the first thing what we need to remember is the bread and the wine that is taken by the people of God is the symbolic representation of the body broken on the cross and the blood shed on the cross of Calvary by the Lord Jesus Christ. तो एक बात याद रखना है, जो पहली चीज है वो क्या है कि जो रोटी और जो दाखरस है ये लोगों के लिए चिन्ह के समान है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को तोड़ा है क्रूस के ऊपर और अपना लहू बहाया है क्रूस के ऊपर, उसका एक चिन्ह है। Do this in remembrance of me. इसे प्रभु ने कहा मेरी याद के लिए ऐसा किया करो। A kind of fellowship with God, a kind of
fellowshipping with God on the same table. ये वास्तव में प्रभु के साथ एक संगति है, जो उसकी मेज में हम उसके साथ रहते हैं। Apostle Paul gives a beautiful illustration in chapter 10, verse 17. There I have told the chapter 10, the you cannot partake in the Lord's table and also the table of the devil. Let's just have a thought about it. Chapter 10, verse 17. और पहला कुरिन्थी 10 के 17 में भी हमने जैसे पढ़ा कि वहां पे प्रभु प्रेरित पौलुस ने उस देह के बारे में बताई है जो कि रोटी है, और उस रोटी में हम सभी लोग भागी होते हैं, वो ये बात बताए हैं। So, verse 17 says that since there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. और 17 वचन में कहते हैं, इसलिए एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। So many members of the local church, many believers, when they partake into the one bread, what they are saying is, we are all one in Christ. तो अगर जो प्रभु के जो कलीसिया के सदस्य हैं, चर्च के जितने सदस्य हैं, वो इस एक रोटी को ग्रहण करते हैं, तो वह इस बात को प्रकट करते हैं कि हम सब मसीह की देह में एक हैं। So we are all one in the body of Christ. That's a declaration they give when every believer partake in the Lord's table. तो प्रत्येक विश्वासी जब मेज की सेवा में शामिल होते हैं, इस टेबल की सेवा में, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो वो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम सब मसीह की देह में एक हैं। And verse 21 of 1 Corinthians chapter 10, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons. You cannot partake of the Lord's table and the table of demons. और पहला कुरिन्थी 10 के 21 में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। So when you are partaking in the body, broken body of the Lord Jesus Christ, you are saying that we are all believers, brothers and sisters, partaking into the one bread, saying that we are all one in the Lord. We are not from the worldly the table of the devil. और हम इस बात को समझना है कि यीशु मसीह की जो देह को तोड़ा गया है, इसका मतलब है कि हम जितने विश्वासी भाई बहन हैं, वो सब इस एक रोटी में, प्रभु में एक हैं। और हम संसार की मेज में नहीं हैं, जो कि शैतान का मेज होता है, उस मेज से हम नहीं खाना है। So whenever we partake in the bread and wine of the Lord, we are declaring that we are one in the Lord and we are not one with the people of this world, that where they partake in the devil's table. और जब भी हम दोराटी रोटी और दाखरस ग्रहण करते हैं, तो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम जो हैं प्रभु में एक हैं, मसीह की देह में एक हो चुके हैं। और हम संसार में नहीं हैं, संसार की देह में नहीं है, क्योंकि संसार जो है वो शैतान के कटोरे से खाता है, इसलिए वहां हमारा कटोरा नहीं है। I believe you remember we have already discussed in 1 Corinthians chapter 10, there were at least four categories. One is idolatry, the second one is immorality, and the third one is tempting the Lord, and the fourth one is murmuring and grumbling. और याद रखिए, अभी हमने जो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में जो चार मुख्य जो गलतियां जो हमने देखी थी, जो इजरायलियों ने किया, पहला मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार, तीसरा प्रभु को परखना या उसकी परीक्षा लेना, और चौथा कुड़कुड़ाना। The Bible says, do this in remembrance of me. और बाइबल बताती है कि मेरे याद के लिए ये किया करो। But Roman Catholic fellowship, they believe that when they partake in the bread and wine, they believe that they're literally eating the flesh of the body of Jesus Christ, literally drinking the blood of the Lord Jesus Christ. That is their belief.
But I believe in the Bible never says that. It's only symbolic representation, but not literal representation. और जो रोमन कैथलिक विश्वासी हैं वो ये मानते हैं कि वास्तव में हम प्रभु की देह को खा रहे हैं और वास्तव में उसके लहू को पी रहे हैं, ऐसा वो मान के चलते हैं। परंतु हम इस बात को नहीं मानते। परंतु हम जानते हैं कि रोटी और जो दाखरस हम ले रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू का केवल एक प्रतीक है, अर्थात चिन्ह है। And verse 26, 1 Corinthians chapter 11, verse 26. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. और हम इस वचन को देखते हैं, वचन लिखा है 26 में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Here in this verse 26, we find three tenses: past tense, present and continuous tense, and the future tense. आप देखेंगे 26 वचन में तो जो अलग अलग काल हैं, समय खंड, वो इसमें बताया गया है। वो उसमें भूतकाल है और भविष्य काल है, और जो लगातार चल रहा है वो और भविष्य काल भी है। So, the Lord's death, 2000 years back, Jesus died for me. He paid heavy price to purchase me, to deliver me, to redeem me. And he died and rose again victoriously. That is what we are remembering. Do this in my remembrance means we remember Jesus died for me. He purchased me. I belong to him. I am not of my own. He is my Lord. He is my Savior. And he is my God. He loved me. I remember it. That's a 2000 years back what was done. But now I remember. और ये जो बातें हैं जो यहाँ लिखा है उसका क्या मतलब है कि तुम जब ये रोटी खाते हो तो ये 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए मर गया है, तुम्हारे लिए मृत्यु को सहा है, वो तुम्हारे लिए कीमत तुम याद कर रहे हो, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु ने तुम्हें खरीदा है, तुम प्रभु के हो और तुम्हें प्रभु का प्रेम मिला हुआ है, इसलिए आज तुम उसे प्रेम कर रहे हो। तो ये जो है प्रभु भोज, उसकी याद हमें दिलाता है। So God commands His church to exercise the Lord's table till second coming of the Lord Jesus Christ. So second coming is future till He comes. और ये जो प्रभु भोज की जो आज्ञा है, ये परमेश्वर ने दी है मानने के लिए कि हम इस मेज में शामिल हो, इसलिए मानने के लिए दिया गया। और वो कब तक के लिए? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक के लिए, जो कि भविष्य काल का चिन्ह है। So now what do I do? Here He says in verse 26, I proclaim the Lord's death. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? तो यहाँ पे लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ। So I proclaim the Lord's death means I proclaim the gospel of God's love to the people. You are gone on mute, brother. Sorry for the interruption. Can you hear me? Yeah, go ahead, brother. जस्ट अ मोमेंट अंकल, इट्स इम्पोर्टेंट वर्क। देयर इज कॉल फ्रॉम दैट हॉस्पिटल। Okay, okay.
यस अंकल, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. So we preach gospel. We proclaim the Lord's death means we preach gospel. और हम जब ये घोषणा करते हैं प्रभु की मेज में शामिल होकर, तो इसका मतलब है कि हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं। So this is also very, very important fact, and so I'm taking little time more. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैंने इसे समय लेकर समझाया। Many people take, observe this the Lord's table as a rituals. और बहुत सारे लोग जो हैं इस मेज को की सेवा को लोग रीति रिवाज के रूप में पूरा करते हैं। Actually, it has a deep meaning. Whenever we partake in the Lord's table, we do it out of reverence, out of love, out of commitment, out of self-examination. और याद रखिएगा कि ये जो प्रभु मेज की सेवा है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। और इस मेज की सेवा में हम अपने प्रभु के प्रति प्रेम को, अपने समर्पण को और खुद को हम जांचते और परखते हैं। ये सारी बातें इस दौरान होती है। Some people have great fear in conducting the Lord's table, and so they do it, some people once in a month, some people once in 2 months, once in 6 months. Even there are people who do only once in a year because out of fear, because Bible says the judgment is very, very, scary one. और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मेज की सेवा में बहुत भय के साथ उसे पूरा करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को डर होता है। कुछ लोग महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग महीने में 2 महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में एक बार करते हैं। इवन कुछ लोग साल में केवल एक बार करते हैं, क्योंकि उन्हें इस मेज की सेवा के दौरान होने वाले न्याय का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की एक डरावनी बातें उनके अंदर होती है। Verse 27, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. और 27 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Verse 28, but let a man examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. For who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. For this reason, many among you are weak and sick, and a number sleep. 28, 29, 30 में ऐसा लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। So, every believer is supposed to partake in the Lord's table in a worthy manner. That means a person must be born again, must be baptized, must have clear conscience, no guilt conscience. We have already seen. So, by eating the bread and body, we are declaring that we are one as body of Christ, together in Christ. और एक विश्वासी को एक अच्छी योग्यता में ये मेज में शामिल होना है, और उसे योग्यता के रूप में नया जन्म पाया होना होना है, बपतिस्मा लेना है, और उसका विवेक भी शुद्ध होना है। उसके विवेक में दोष की भावना नहीं होना है। और वो इसके द्वारा इस बात की घोषणा करता है कि वो मसीह की देह में एक है। If any believer continuing in sin, and still he partakes in the Lord's table, that means he is not partaking in a worthy manner. और अगर कोई विश्वासी निरंतर पाप में है और वो इसी पाप की दशा में रहकर मेज में शामिल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक योग्य रूप में शामिल नहीं हो रहा है। If unworthy participation, these three dangers are there written in the Bible. और अगर वो अयोग्यता के रूप में इस मेज में शामिल होता है, तो 3 खतरनाक परिणाम है जो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे लिखा है। One is weak, second one is sick, third one is sleep. और जो 3 मुख्य दंड है उसके ऊपर आ सकता है, वो है पहला है निर्बलता, और दूसरा है उसका रोगी होना, और तीसरा सो जाना। Sleep means death. For a Christian, for a believer, sleeping means death.
और यहाँ जो सोना लिखा है, ये सो जाने का मतलब होता है विश्वासियों की दृष्टि से मृत्यु। Some people misinterpret this text as a spiritual one. No, I believe it is definitely physical, not spiritual. कई सारे विश्वासी लोग यहाँ इसको आत्मिक रूप से देखते हैं, लेकिन ये आत्मिक रीति से नहीं है, परंतु ये जो है मृत्यु का रूप है। So, if we partake in the Lord's table unworthy manner, we'll have some kind of weakness. Somehow we will not be strong, even if you eat the best of the availability, but still you will be weak. Doctors can't help, medicines can't help. और अगर हम अनुचित रीति से मेज में शामिल होते हैं तो यहाँ पे दुर्बलता हमारे जीवन में आ जाएगी। भले हम कितना भी अच्छा भोजन लें, कितना भी मेडिकल रूप में हम अच्छी सुविधा में रहें, परंतु यहाँ पे एक निर्बलता उसमें आ सकती है। So at least we should realize why this weakness has come. Is it because I'm continuing in sin against God and still partake in the Lord's table as if nothing is wrong? तो इसलिए हमें अपने आप को परखना चाहिए कि मैं इस निर्बलता में क्यों हूँ। क्या मेरे जीवन में कुछ पाप है जिसके कारण मैं पाप की दशा में मेज में शामिल होने के कारण क्या मेरे जीवन में ये निर्बलता आ रही है, इसको हमें परखना चाहिए। Some people, they don't saturate their life. They don't partake in the Lord's table. They think they are safe. It is also wrong. और कुछ लोग होते हैं जो मेज से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई हम कुछ पाप कर रहे हैं, तो मेज से दूर रहना ही ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। So Bible says, if you fall, you rectify, get back to the Lord. Saturate yourself. बाइबल कहती है अगर आप गिर गए हैं तो आप अपने आप को सही करें, वापस आए। Sometimes, to please the people, people may notice, people may understand. For that reason, to please the people, they continue in sin but still partake in the Lord's table. They know that they are continuing in sin. They know that a particular weakness is because of the judgment of God. Then the second level is sickness. That means they fall on the cot. और जब ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप में भी जीते हैं और लोगों को प्रसन्न करने के लिए संसार में जीते हैं, और मेज की सेवा में भी शामिल हो जाते हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रकार के धोखे के कारण दूसरा दंड लोगों पे आता है और वे लोग रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। So they can't rise from the bed, they lie on the bed, and the weakness grows so much so that they become sick. They are confined to the bed. और ये जो कमजोरी इतनी बढ़ती जाती है कि कमजोरी जो है उन्हें बीमारी के रूप में ले आती है और वो बीमार हो जाते हैं। At least at that point of time they should be ashamed and they should realize and rectify things with God. If they don't do it, they will die. और यहाँ पर भी जब वो बीमार हैं तब अभी उन्हें शर्म आना चाहिए, अपने जीवन को वो सुधारना चाहिए, उनके जीवन में सुधार के प्रभु के पास वापस आना चाहिए। और अभी भी जब वापस वो नहीं आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। So, self judgment, self examination. God gives us grace, a believer, to examine ourselves. That means we only write the question paper according to the scriptures, scriptural truth, and we only evaluate it. We only finalize to what level we are. That is the amazing freedom given by the Lord to every believer. Self examination. You don't have to publish everything that is in your life, but in the light of the scripture, examine yourself, saturate yourself, grow spirituality, grow in holiness. तो हम देखते हैं प्रियो कि स्वयं को हमें जांचना है। ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दे दिया है कि परमेश्वर के सत्य वचन के प्रकाश में एक विश्वासी खुद ही अपने सवाल पेपर लिखे, खुद ही अपने जीवन को जांचे और खुद ही वो जाने कि वो आत्मिकता के कौन से स्तर पे है। तो विश्वासी को ये अनुग्रह है कि वो स्वयं जांचे, उसे किसी भीड़ के सामने जरूर जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, परंतु वो स्वयं अपने आत्मिकता को जांच सकता है कि वो कब पवित्रता में कैसे बढ़ रहा है। But you have any brother or sister close to you who can understand you, who can keep things private, you can definitely choose a senior mentor and take help and pray and overcome, and that's how we grow spiritually.
और हम देखते हैं कि अगर कोई भाई बहन हमारे आसपास हैं जो समझदार हैं, जो हमारी बातों को गुप्त रख सकते हैं, कोई हमारे सीनियर मेंटर हैं, हमारे जो वरिष्ठ अगुए हैं, ऐसे लोगों से मदद ले सकते हैं, उनसे प्रार्थना भी करा सकते हैं ताकि हम अपनी परिस्थितियों से बाहर निकले, उसे जय पाएं, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। The Lord's table, is an amazing opportunity for every believer to enjoy fellowship with God. और मेज जो है, प्रभु की मेज जो है, हम में से हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु की संगति में रहने का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय है। It is also a very serious and delicate issue. If we partake in the Lord's table in unworthy manner, we will pay for it. और साथ ही उसी समय प्रभु की मेज में शामिल होना एक गंभीर और एक नाजुक मुद्दा भी है, क्योंकि ये गलत रीति से करने से हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। I wanted to complete 1 Corinthians at least today. Now the time is up. I have to stop here. और हम सोच रहे थे आज पहला कुरिन्थी की किताब पूरा कर देंगे, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया, तो हमारा समय समाप्त हो गया, यहाँ हम रुक सकते हैं। God willing, we will begin chapter 12 in the next sitting.